अगस्त 2024 नेशनल लाइब्रेरी के सभागार में मंत्रा फाउंडेशन, आई लीड और भी कई संस्थाओं ने मिलकर इस क्विज कॉन्टेस्ट को कराया, जिसमें प्रकृति के विभिन्न आयामों के द्वारा आज की भौगोलिक स्थिति पर ये क्विज कॉन्टेस्ट था, जिसमें उपस्थित थे नवल किशोर अरोड़ा, स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक, प्रज्ञा झुनझुनवाला मंत्रा से, खेमका जी मंत्रा से, विभोर टंडन जी मंत्रा से और गन्स एंड सेल फैक्ट्री की प्रिंसिपल मीनाक्षी राय इसमें मुख्य अतिथि थी। इन्होंने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की और बच्चों से उन्होंने जो प्राकृतिक में आज की प्राकृतिक स्थिति, लगातार घर्षण, जल जमाव, गर्मी, धूप जिस तरह से उत्पन्न हो रही है, उसके ऊपर उन्हें बताया भी और उनको ऊपर क्विज भी कॉन्टेस्ट करवाया। धन्यवाद। मैं मीनाक्षी सांगानेरिया सदीनामा पत्रिका से आप सबको इस क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। आपको अगर और भी जानकारी लेनी हो, आपको अगर YouTube अच्छा लगे तो हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु से संपर्क करें 9231845289। सदीनामा की वेबसाइट है sadinama.in, safarnama.com एंड sundarban.com। some kind of knowledge giving for environment. That is our main purpose. So whoever come here, I must assure them and people who are participating in this quiz, they must be having a good knowledge of environment. That is our main purpose. So future also we will be doing this kind of quizzes for environment, so that the children must get knowledge, deep knowledge about the environment. Thank you. Respected Chairman Sir, National Coordinator, principals present here, teachers and representatives of other schools. I can see some of these teachers who have been there right from the beginning with us, and a lot of thanks to them. And even all our lovely participants. Nothing less than a great honor to be present here, to be part of this wonderful initiative. The idea initially was to create awareness about environment today. And the reason why we want to create awareness and understanding about environment is not for the environment, but for ourselves. Only if you want to see the next generation live happily, only if we want to see our dear Mother Earth survive the next century, it is nothing less than extremely important to actually learn, understand and save our environment. And I'm sure that all these lovely enthusiastic participants who are here today will really enjoy, and I can already feel the kind of excitement which is there, even though some participants and some of you might feel that some of the chairs are empty, but it is about the aura, it is about your own enthusiasm, it is about the atmosphere which is created, and some electrifying atmosphere is already seen here. I want to extend my heartiest thanks to all of these sponsors as well, and I welcome all of you here. My best wishes to all. Welcome to you from Mantras Foundation. I am Pragya Junjunwala, National Coordinator for Programs in Mantras Foundation, and this was conceptualized by the motivation of my own daughter, who kept standing and pestering everyone, पानी मत फेंको, आप लोग खाली ज्ञान देते हो, आप लोग खाली लेक्चर देते हो, but you don't follow. So ये बच्चे ही हम लोग को फॉलो करवाएंगे, बिकॉज अभी भी हम लोग जो एल्डर्स होते हैं प्लास्टिक की थैलियाँ लेके निकलते हैं,
बच्चे जूट का बैग लेके निकलते हैं, बच्चे ठोंगा यूज़ करते हैं, and they are concerned about running ACs also. So the inspiration behind this entire sensitization, and we really thought very hard on this कि environment के ऊपर poster competitions होते हैं, projects होते हैं, but never we are doing anything to actually raise creativity inside a child's mind. And Mantras Foundation is all about empowering minds through knowledge and wisdom sharing. All the people who are here, it's an international organization. We have branches in UK, we have branches in US, Delhi, Pune, and soon 5 more branches are coming pan-India. So whoever is attached in this, we all are like-minded people with the mind that कि अगर हम लोग को फ्यूचर सोसाइटी को एलिवेट करना है तो इट कैन ओनली हैपन थ्रू नॉलेज, ट्रेनिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ विजडम एंड ट्रांसफॉर्मेशन. सो आवर मंत्रा इज सिंपल: empower, elevate and evolve. And that is why we are here today, and we are seeing environment champions today, bearers for all the society, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है. एनवायरनमेंट हम लोग को मिलके बचाना है. प्रकृति हम लोग को बनाई, हम लोग प्रकृति को खराब कर रहे हैं. Good evening to all. Myself, Dr. Naval Kishore Arora. I am presently working as Regional Director in Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, posted at Salt Lake, Sector 5, Kolkata. अभी जो आज इस प्रोग्राम में जो मंत्रास फाउंडेशन ने यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में कंडक्ट किया है, आज इन बच्चों 9-10th के स्कूल्स के बच्चों के लिए जो एनवायरमेंटल क्विज कंपटीशन के रूप में इन्होंने जो कंडक्ट किया है, वो एक बच्चों के लिए बहुत हेल्दी कंपटीशन होने जा रहा है. इसमें बच्चों ने अपनी बहुत ही मेहनत की हुई है और कलकत्ता के डिफरेंट स्कूल से बच्चे, CBSE स्कूल से और डिफरेंट बोर्ड से वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं. और मंत्रास फाउंडेशन वो इस दिशा में सामाजिक कार्यों में और एजुकेशन के क्षेत्र में, स्किल के क्षेत्र में, वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा समाज के लिए कार्य कर रहा है. इसके स्पेशली जो मेंटर हैं मैडम प्रज्ञा झुंझुनवाला और मिस्टर टंडन, वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. और इस कार्यक्रम से जो आज एक एनवायरमेंटल क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसमें ये बच्चे अपनी प्रतिभा बहुत अच्छे तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे. और इनको यहाँ पे इस फाउंडेशन की तरफ से, मंत्रास फाउंडेशन की तरफ से इनको विनर्स को इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, जो कि इन बच्चों का एक हौसला बढ़ाएगा ताकि अपने आने वाले भविष्य में वो एक सक्सेसफुल देश के लिए नागरिक बनेंगे. और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी स्पर्धा से ये बच्चे जब अपने घर जाएंगे तो इस फाउंडेशन के बारे में बताएंगे, तो और उनके पेरेंट्स, जो रिलेटिव्स, आने बाकी अन्य समाज के लोग इससे प्रेरित होंगे और इस फाउंडेशन से जुड़ेंगे और इससे हमारा समाज का और देश की उन्नति होगी. धन्यवाद. सर, अभी एक क्वेश्चन है आपसे. स्किल डेवलपमेंट पे अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है, थोड़ा बताने की दर्शकों को कृपा करें. जहाँ तक मैं ईस्टर्न रीजन में पोस्टेड हूँ, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में यहाँ पे सरकार का बहुत बड़ा रुझान है. यहाँ पे हमारे पास रीजनल डायरेक्टरेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर क्षेत्र में हमारा जो बहुत ही अपना इंडिपेंडेंट कार्यालय है सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में, वहाँ पे हमारे पास NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन विंग है, जिसमें कि हमारी डिफरेंट इनकी ट्रेड्स वो चलती हैं. गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए वुमेन भी उसमें, वो 10th पास स्टूडेंट्स, आगे वो किसी भी एज की हो सकती हैं, उनको डिफरेंट हमारी ट्रेड्स हैं, फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, देन ड्रेस मेकिंग, देन इनका कॉपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस. तो इसमें ये बच्चे
हमारे इस इंस्टीट्यूट में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ये संस्थान है। इसमें बच्चों की ऑलमोस्ट फ्री शिक्षा होती है जो गर्ल्स कैंडिडेट्स की होती है, और कुछ भी नहीं, ये बोर्डिंग भी है यहाँ पे, हॉस्टल, और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वो यहाँ पे हमारे पास 4 एकड़ में वो मौजूद है। इनका बच्चों का रहने का भव्य हॉस्टल है, और बहुत ही जो लैब्स हैं, लेबोरेटरीज और वर्कशॉप, बहुत स्टूडियोज़ वो बहुत वेल इक्विप्ड हैं, जिसमें कि बहुत उच्च स्तर की ये बच्चे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और जो है जॉब्स के लिए ये यहाँ पे इनको तैयार किया जाता है। और इंडस्ट्रीज़, एंटरप्रेन्योर्स, जिसमें कि मंत्रास फाउंडेशन भी एक है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी बच्चों को प्लेस करने में मदद करता है। और एक हमारा इसी का स्किल डेवलपमेंट का दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो दासनगर में है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो बच्चों के लिए है। उसमें हमारे कन्वेंशनल ट्रेड्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, डिफरेंट 12 ट्रेड्स हैं, और उसमें बहुत ही लेबोरेटरीज, उच्चतम लेटेस्ट हमारी CNC मशीन्स, ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रीशियन के लिए, प्लम्बिंग के लिए, ये पैटर्न मेकिंग के लिए डिफरेंट लेथ मशीन्स, वो बड़ी हाई इवन फॉरेन की मशीन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और बच्चे वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्किल में बहुत ही अच्छी माहिरता प्राप्त करते हैं, और उसमें भी जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत ही जल्दी उन बच्चों को एक अच्छे पैकेज पे वो लेके जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारा स्किल का और एंटरप्रेन्योरशिप का ध्यान दिया जाता है। और दूसरा, हम अपने इस रीजनल ऑफिस की तरफ से हम इनका अप्रेंटिसशिप का भी बच्चों का ध्यान रखते हैं, ताकि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में बच्चे हमारे यहाँ से जाते हैं, जो ट्रेनिंग पार्टनर से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनका हम ध्यान रखते हैं। उन बच्चों को उनका अप्रेजल लिया जाता है, और समय पे जो उनका एक स्कॉलरशिप है वो उनको टाइमली दिया जाता है DBT माध्यम से। और बच्चों को भी हम प्लेस करने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमारा बच्चों के लिए ही ये सारा वो रहता है, ताकि एक एजुकेशन जो वो प्राप्त कर रहे हैं वो एक नॉर्मल एजुकेशन ना हो के एक स्किल अपना हाथ का, जिसमें कि वो एक उनकी रुचि और उनके पास एक कला हो, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर नवल किशोर अरोड़ा, मैं यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। और मैं अभी न्यू दिल्ली से मैं पोस्टिंग होके लास्ट 3 मंथ से कोलकाता में आया हूँ। हमारा सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में कोलकाता में हमारा ऑफिस।